وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈاپور نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی۔ ایک بیان میں کہا کہ وہ صوبائیت کے چکر میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔ سب کو مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے کو اپنے بچوں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بننا چاہیے۔ میں اپنی کوئی سیاست کر رہا ہوں یا میرے کوئی صوبائیت کے چکر میں میں پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، پورے پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ جب پاکستان کا فائدہ ہے تو پاکستان کے فائدے کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا کسی کی اپنی ذاتی یا صوبائیت یا چھوٹے لیول کی کسی طرح کی کنسرن کی وجہ سے۔ میرا یہ موقف ہے کہ تمام کو اپنے حقوق کے مطابق تحفظات کو دور کر کے اور مطمئن کر کے واٹر رائٹس کے ڈاکومنٹس کے حق کے مطابق سب کو آپ مطمئن کر کے کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں جامع مذاکرات کی نگرانی کے لیے چین کو دعوت دے دی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جنوبی ایشیا میں جامع مذاکرات چین اپنی سربراہی میں کرائے تاکہ ہم ان مذاکرات کے ثمرات جلد از جلد حاصل کر سکیں۔ And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بیرونی عناصر کی مدد سے دہشت گردی کا معاملہ SCO اجلاس میں اٹھا دیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس سے خطاب میں بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ دہشت گردوں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرنے والوں کا بیانیہ دنیا تسلیم نہیں کرتی۔ جعفر ایکسپریس سمیت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ گھناؤنے جرائم کے ذمہ داروں اور ان کے سہولتکاروں کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے نام لیا بغیر جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے لیے بھارت کو جامع مذاکرات کی دعوت بھی دے دی۔ Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SCO members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members. ضلع ملتان میں دریا کے قریب نشیبی علاقوں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور دریائی علاقوں سے نقل مکانی کا عمل بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عمران چودھری۔ جی، میں اس وقت ہیڈ محمد والا کے مقام پہ موجود ہوں جہاں سے دریائے چناب سے انتظامیہ کے مطابق آج رات یا صبح کے وقت 8 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ ہیڈ تریمو پر بھی پانی کا دباؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ملتان تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ ملتان سے 30 کلومیٹر پیچھے رنگ پور جو کہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے سیلابی ریلے پہنچ چکا ہے اور وہاں پہ تباہی مچا رہا ہے۔ ایک زمیندارہ بند بھی توڑا گیا ہے جبکہ 13 سے 14 بستیاں جو ہیں وہ بھی زیر آب آ چکی ہیں۔ ملتان کے جو بیٹ کے علاقے میں 4 سے 5 فٹ پانی آلریڈی موجود ہے۔ 140 بستیاں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ 4 لاکھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ نقل مکانی کی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق 30 ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں اور یوں ایک ریلیف کیمپ میں 12 سے 13 ہزار افراد کی کیپیسٹی بنتی ہے، لیکن اتنے لوگ جو ہیں وہ ریلیف کیمپوں میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے جو اپنے عزیز و اقارب تھے ان کے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ ریلیف کیمپ کے جو لوگ ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں کہ متاثرین سیلاب کو کن کن چیزوں کے متعلق جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، اس طرح سے یہاں پر ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی اور انہوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ 200-300 لوگ ہیں، جانور یہ ہیں ایسے بیٹھے ہیں، جانور ہی ایسے بیٹھے ہیں۔ انتظامیہ صرف آ جاتی ہے، سامان وغیرہ دیتی نہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ تصویریں وغیرہ بنوا دیں 2-4، وہ اپنے
10 घरों की तस्वीरें ले लेती है, उसमें से एक घर का सामान दे के जाती है, 9 का वो ले जाती है बस। दरिया चनाब हेड मराला के मकाम पर पानी के बहाव में 10,000 क्यूसेक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,04,320 क्यूसेक है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं GA न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर। आज देखें, हम इस वक्त मौजूद हैं वज़ीराबाद में दरिया चनाब के करीब। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि वज़ीराबाद की ज़िला इंतज़ामिया हो या सियालकोट, गुजरात और हाफजाबाद की, जहाँ से पहला सैलाबी रेला गुजर चुका है, वहाँ इस वक्त 2 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में काम हो रहा है। एक तो पहले सैलाबी रेले के जो असरात हैं उस पर जो रिलीफ ऑपरेशन है वो तेज़ी से जारी है। हमने देखा है कि मुतासरीन को वापस आज उनके घरों में भिजवाया जा रहा है और वापस जाने वाले मुतासरीन को ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से राशन बैग ना सिर्फ दिए गए हैं बल्कि जो हेल्थ टीमें हैं वो मुतासरा देहात में जा रही हैं और इसके साथ साथ वेटरनरी डॉक्टर्स को भिजवाया जा रहा है। एक तरफ तो ये रिलीफ ऑपरेशन है और साथ ही कमिश्नर गुजरांवाला ने ये भी बताया है कि जितनी भी बड़ी शाहराहें थी, जैसे सियालकोट का बजवात पुल था और गुजरात का शहबाज पुल है, उनकी मरम्मत का काम जारी है, उनको जल्दी मुरम्मत कर लिया जाएगा। वज़ीराबाद का जो पुराना GT रोड है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इसी तरह हेड कादराबाद से मंडी बहाउद्दीन को मिलाने वाला जो फालिया रोड है उसकी भी तामीर व मरम्मत का काम शुरू हो गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। GA न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुँचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बिराज पर कितना पानी आ सकता है। हम तवक्को कर रहे हैं कि 6 सितंबर को सबसे बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बिराज से गुजरेगा। NDMA के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इतना पानी आता है तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। चनाब रिमू से ये पानी आगे पंजनत पे जाएगा और रिमू से पंजनत तकरीबन 3 दिन से थोड़ा ऊपर टाइम लगता है, तो हमें 3 दिन बाद पंजनत पे पता चलेगा और पंजनत पे फिर सतलज का पानी और रावी का पानी भी आके यहाँ मिलेगा। उस वक्त हमें पंजनत पे पता चलेगा कि कितना पानी जो है वो गुड्डू पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास 2 दिन होंगे। पंजनत से गुड्डू तक 2 दिन लगते हैं, तो वील हैव 2 days टू प्रिपेयर वंस पंजनत रीचेस इट्स पीक। सो वी एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, लेकिन जैसे बताया गया है हम तैयारी सुपर फ्लड की कर रहे हैं। 6 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो सबसे बड़ा रेला गुजरेगा गुड्डू बराज से। 9 लाख की तैयारी की है। NDMA कह रही है 10 से 12 लाख, 8 से 10 या 10 से 12 लाख क्यूसेक, तो ये बहुत बड़ा फ्लड होगा। पूरा हमारा कच्चा डूब जाएगा अगर इस बार का पानी आता है। हम फेयरली कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये पानी गुजार लेंगे। जो 7 लाख पे है वो तो हम वो तो इवैक्यूएट कर रहे हैं, लेकिन 7 लाख से ऊपर जो है वी विल सी द सिचुएशन। हमने मार्क कर लिए हैं कि 7 से 9 लाख के दरमियान अगर हम पानी एक्सपेक्ट करेंगे तो कौन कौन से गांव इवैक्यूएट करने हैं। हमारा जो फील्ड स्टाफ है उन गांवों को इन्फॉर्म कर चुका है कि जी आपको इवैक्यूएट किया जा सकता है, तो आप तैयार रहें। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, कई सेक्टर्स में गाड़ियां डूब गईं। कई इलाकों में पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। H8 में 98 मिलीमीटर, गोलड़ा 76, बोकड़ा 52 और सैदपुर विलेज में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बारिश न्यू कटारिया में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद से अयाज अकबर, यूसुफ जई की रिपोर्ट। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद में कई सेक्टर्स में तकरीबन 1.5 घंटे में इतनी बारिश बरसी कि गाड़ियां डूब गईं। G8, G11, G10 और F11 में पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। कई अंडरपासेस भी ज़ेरे आब आ गए। मेट्रो ट्रैक पर भी जगह जगह इतना पानी जमा हो गया कि बस सर्विस कुछ देर तक मुअत्तर रही। बाराकू और बनीगाला से गुजरने वाले नाला कोरंग में तुगयानी आ गई और इससे बाद मुकामात में बने पुल भी ज़ेरे आब आ गए। बनीगाला में कई मोटरसाइकिल सैलाबी रेले में बह गए। बाराकू बाईपास पर भी कई फुट पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक H8 में 98 मिलीमीटर, गोल्डा 76, बोगड़ा 52 और सैदपुर विलेज में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश न्यू खटारिया में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जहां नाला लई की सतह 15.7 फुट तक बुलंद हो गई। इसके अलावा पीरोदाई में 42 मिलीमीटर, शमशाबाद में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एमडी वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक नाला लई और शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। हाई अलर्ट और रेन इमरजेंसी नाफिज है। अमला और हैवी मशीनरी फील्ड में मौजूद है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही रिपोर्टर शबीर डाल के साथ अयाज अकबर से जियो न्यूज इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने असिस्टेंट कमिश्नर पतों की फुरकान अहमद खान मरहूम की खदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया है और उन्हें आला सिविल अवार्ड देने के फैसले के अलावा उनके वरसा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट देने का भी ऐलान किया है। असिस्टेंट कमिश्नर पतों की फुरकान अहमद खान कैंसर के मरीज होने के बावजूद 4 दिन से मुसलसल फ्लड रिलीफ ड्यूटी कर रहे थे। वो पतोकी के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ रहे और मुतासरीन सैलाब को खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल काम किया। फुरकान अहमद खान गुज़श्ता रोज़ जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की मदद करते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हकीकी हीरो हैं। फुरकान अहमद खान मरहूम की फ़र्ज शनासी हमेशा याद रखी जाएगी। और अब बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम इजलास के हवाले से। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार किया है। पहलगाम, जाफर एक्सप्रेस और खुजार दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि दहशतगर्दों के सरपरस्तों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। एजाज सैयद की रिपोर्ट। जाफर एक्सप्रेस, खुजदार और पहलगाम में दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करते हैं। ईरान पर हमला इसकी कौमी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी। अफगानिस्तान में जामिया और नुमाइंदा हुकूमत इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। शंघाई ताउन तंजीम का एलामिया। त्याजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलकत और हुकूमत का इजलास खत्म हो गया। मुश्तरका एलामिये में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद जारी रखने का अज़म जाहिर किया गया। एलामिये में कहा गया कि दुनिया कसीरुल कुतबी और मुनसिफाना आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है, जहाँ तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहदा में इस्लाहात और आलमी सतह पर शफाफ और मुतवाज़न ताउन जरूरी है। फलस्तीन में फौरी और पायदार जंग बंदी की जाए। रुकन ममालिक में SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम, डिजिटल इकॉनमी, ई कॉमर्स के फ़रोग और बाहमी तजारत में कौमी करेंसियों के इस्तेमाल पर इत्तफाक किया गया। तवानाई ताउन, ग्रीन इंडस्ट्री और पायदार तवानाई के मंसूबों की मंजूरी दी गई। तालीम, सेहत, सियाहत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। मसनूई जहानत और नई टेक्नोलॉजीज में मुश्तरका फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। ख्वातीन, नौजवानों और अवामी रवाबत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। त्याजन एलामिये में इस बात पर भी जोर दिया गया कि SCO अपनी सरगर्मियों को अक़वाम मुत्तहदा के साथ हम आहंग रखेगा और आलमी चैलेंजेस का मुश्तरका मुकाबला करेगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में सैलाब में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का अदा किया और सफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अरकान ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया भर में नुमायाँ और मुनफरिद मकाम रखती है। चीन और पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। CPEC फेज़ 2 में स्मार्ट सिटीज़, ज़रई सनत के हवाले से ताउन पर तवज्जो है। कराची पोर्ट, बिन कासिम, गवादर पोर्ट और चीन के तियानजन पोर्ट के दरमियान ताउन और तिजारत को वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी शहर तियानजन से बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आलमी फाशिज़म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह में शरीक होंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे।
भारत ने अमेरिका को टैरिफ सिफर करने की पेशकश कर दी। भारतीय पेशकश अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्तरद कर दी। कहा कि अब देर हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बयान में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को जीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। यही वजह थी कि कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से खरीदता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि सैलाब से अंदाजन 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिछले साल $4 अरब का चावल बरामद किया गया था। इस साल इसमें कमी आएगी। कपास, मकई और कमाद की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि काश्तकार पहले ही मसाइल में घिरे हुए थे। गंदम और कपास का रेट तक नहीं मिल रहा था, मगर अब किसान की दुनिया ही उजड़ गई है। तकरीबन इस वक्त तक जो हम एस्टिमेट लगा रहे हैं वो रफली एस्टिमेट है 15 से 20 लाख एकड़ का नुकसान हो रहा है जी। चावल की फसल है, मक्की की फसल है, कमाद की फसल है, कपास की फसल है और तमाम किस्म की सब्जियात है और खुसूसन चारा जात है जो जानवरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जानवरों के लिए भी खुराक का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। पहले ही काश्तकार बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था कि उसको बहुत सारी चीजों का, गंदम का रेट नहीं मिला, कपास का रेट नहीं मिला, तो अब तो आके बिल्कुल उसकी हर चीज ही उजड़ गई, यानी कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इस वक्त पिछले साल हमने चावल तकरीबन $4 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था, उसमें भी कमी आएगी। पहले ही बहुत कमी थी कपास की फसल में, लेकिन अब और ज्यादा कमी आ गई होगी। मक्की की फसल पहले ही बहुत कम थी, अब उसकी काश्त भी कम थी, अब कमी आ गई। तमाम तरह की सब्जियात जो हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं उसको नुकसान पहुंचा है। हत्ता के फ्रूट जो किन्नू वगैरह बागात जहाँ पे रिजत में आए उनको भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि अभी कच्चा फल था। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि दरिया चनाब में सैलाबी पानी तरेमू हेडवर्क्स पर अपनी इंतहा को पहुंचने के बाद अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ जा रहा है। एतमाद से कह सकता हूं कि तरेमू हेडवर्क को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अब आगे इसमें दरिया रावी का पानी भी शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से मुल्तान पर प्रेशर आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए इरफान काठिया ने कहा कि दरिया रावी का सैलाबी रैला हेड सिद्धनाई पहुँच गया है। हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए आज रात किसी भी वक्त माई सफूरा बंद तोड़ा जा सकता है, जिससे 14 मौजाजात मुतासर हो सकते हैं। खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और तीनों दरियाओं का जो पानी है इस वक्त ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू है। चनाब में पानी का मेन रेला है इस वक्त वो हेड त्रिमू के मुकाम पर झंग में पीक अपनी अटेन करने के बाद अब आगे फर्दर मुल्तान हेड मोहम्मद वाला की तरफ जा रहा है। जब किसी भी वक्त पानी मुल्तान हेड मोहम्मद वाला पर पहुंचेगा तो इसके साथ जो रावी का पानी है वो भी मिल चुका होगा, लिहाजा मुल्तान के लिए एक प्रेशर आएगा। और रावी के पानी की अगर मैं बात करूं तो वही रेला इस वक्त वो हेड सदनाई के मुकाम पर पहुंच चुका हुआ है और जो क्रिटिकल पॉइंट पे ये जाएगा और यहाँ पे एक जो माई सपूरा बंद है हमारा ब्रीचिंग सेक्शन, उसको ऑपरेट खुदा न खास्ता आज रात किसी भी वक्त वो हमें करना पड़ेगा। और उसके पेश नजर तकरीबन 14 मुआवजात हैं जो आगे इफेक्ट होंगे और इनकी तकरीबन 20 से 24 हजार आबादी है जिसका इनखला ऑलरेडी यकीनी बना लिया गया हुआ है। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ऑप्शनल ट्रेनिंग की। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 2 मैच में फतूहात हासिल की हैं। उसने अफगानिस्तान को अपने पहले मैच में 39 रन से मात दी थी।